اللہم صلی علی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور سب بہنیں آپ درود شریف پڑھ لیں. ہمارا دوسرا سیشن چلے شروع مل ہے, کے سارے مل کے ہی پڑھتے ہیں. مل کے پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید. اچھا, اب ہمیں یہ نا پریکٹس ہونی چاہیے کہ ہم اکٹھے کیسے پڑھتے ہیں تاکہ سبھی کو ایک دوسرے کو, کوئی آگے جا رہا ہے کوئی پیچھے جا رہا ہے نا, آواز اکٹھی آواز نہیں آ رہی سب کے. پھر اپنی چھوڑ کے دوسرے کے ساتھ مل جایا کرے نا تو اکٹھی پھر ہوگی جگہ. اگر ہم اپنی ہی لگائے رکھتے ہیں تو پھر نہیں ملے گی نا, کبھی بھی نہیں آپ ملے گی. پڑھیں ہم آپ کے ساتھ مل جاتے ہیں انشاءاللہ کوئی بات نہیں. اب ہم دوسرے میں انشاءاللہ پڑھیں گے تو آپ لوگ پڑھیں گے اکٹھا. تو ہماری حسن اخلاق کا میں نے آپ کو اسکرین شیئر کر دی ہے. نہیں باجی نہیں, ہم شیئر کرنے لگے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. تو جہاں پہ حسن اخلاق کی چیپٹر 4 کرنا ہے ہم نے, چیپٹر نمبر 4. صبر نہیں ابھی ہم نے کیا, آج کرنا باجی میرے خیال آج میں کرنا صبر ہے. جی آج صبر سے شروع کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں صبر دے, آمین. صبر ہی ہم کھو دیتے ہیں نا, بے صبری جلدی سے ہم انسان دکھا دیتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں صبر عطا فرمائے, آمین ثم آمین انشاءاللہ تعالی. تو صبر کیا, پیشن ہر چیز میں صبر چاہیے. ہر چیز میں صبر چاہیے. اللہ تعالی ہمیں صبر کی توفیق دے. ہم بہت بے صبرے ہو جاتے ہیں, سبھی کا یہی حال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالی کا ارشاد, قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. سورہ بقرہ 163. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز سے مدد لو. یعنی صبر بھی اور نماز بھی. نماز جہاں پہ نماز ہے کہ اپنی نفل پڑھیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی مشکل پیش آتی, معاملہ پیش آتا, تو اللہ کے نبی اور صحابہ اکرام کا بھی یہ پھر تھا معمول کہ وہ نوافل کے لیے کھڑے ہو جاتے, نوافل پڑھ کے دعا کرتے. تو ہمیں بھی کرنی چاہیے. لوگوں کو اکٹھا کر کے وہ نماز حاجت نہیں میں کہہ رہی پڑھانے کے لیے, میں خود پڑھنے کے لیے کہہ رہی ہوں. اور یہی معمول تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. جو اللہ کے نبی کا معمول ہے وہی ہم نے کرنا ہے, اس سے بڑھ کر نہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. آگے ہے تو صبر اور نماز. ایک تو صبر کرنا ہے, کوئی مصیبت بھی آئی ہے, کوئی بھی تکلیف ہے, کوئی بھی اذیت ہے, جو بھی ہے اس پہ پہلا صبر ہے. اور پھر استعین کا مطلب ہوتا ہے تعاون, یعنی کہ حاصل کرو, اللہ سے مانگو. صبر اور والصلاۃ نماز کے لیے. قال اللہ تعالی انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا. سورہ زمر آیت 10. تو جو اجر کرے گا ان کا, تو جو صبر کرے گا ان کا اجر بھی بے حساب ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں, جو بھی مصیبت آتی ہے ہم واویلا کرنے کے بعد, لڑائی جھگڑا کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں میں نے صبر کر لیا, میرا تو صبر ہے بس.
یہ صبر نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آگے ہی شاید آئے گی کہ صبر جو ہے وہ تو صدمے کے اولا یعنی صدمے کے شروع میں ہوتا ہے. جو اس وقت صبر کر گیا وہ صبر ہے. جو بعد میں اس ہر کام کرنے کے بعد پھر صبر کیا وہ صبر نہیں ہے. وہ تو آ ہی جائے گا, بعد میں تو آ ہی جائے گا. پہلا صبر اللہ تعالیٰ وہ توفیق دے ہمیں. تو یہ کیونکہ مومن جو ہے وہ لوگوں کا خیر خواہ اور ہمدرد ہوتا ہے, ہونا چاہیے. وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو اتنی ہی یعنی کہ اتنی ہی فکر دوسروں کے لیے نہ کرے کہ جتنی اپنے ایمان کے لیے وہ اس کو ہو. یعنی کہ دوسروں کے لیے بھی فکر ہو اور اپنے ایمان کی بھی فکر ہو. اگر ہمارے ایمان کی فکر ہے نا تو دوسروں کی فکر ہم آٹومیٹکلی کریں گے. تو جس کو اپنی ایمان کی فکر ہو نا تو وہ پھر اپنی بات پر دوسروں کی بات پر وہ صبر کرتا ہے, دوسروں کی بات پر صبر کرتا ہے. مومن جو ہے مشقت کرنے والا ہوتا ہے, کیونکہ مومن اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو پکارا ہے نا, یا ایھا الذین آمنو. تو مومنوں کو دیکھنا ہے ہم نے کہ مومن کون ہوتے ہیں نا. تو مومنوں کو اللہ تعالیٰ پکارے ہیں. تو مومن وہ ہوتا ہے جو محنت کرنے والا ہوتا ہے, دوسروں کی باتوں پر صبر کرنے والا ہوتا ہے, دوڑ بھاگ کرتا ہے جنت کے لیے, جنت حاصل کرنے کے لیے کہ جنت میں مجھے جنی بہت ساری سوالوں کی جواب دہی کر کے جنت میں جانا ہوگا. تو وہ پھر ان جواب دہی سے بھی ڈرتا ہے کہ اب خام خواہ لوگوں سے الجھتی رہی جا الجھتا رہا تو اتنے ہی سوال بڑھیں گے وہاں پہ جو جواب دینا پڑے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں پہ پھر آپس کے معاملات جو ہے وہ یعنی کہ لوگوں کو یعنی کہ خام خواہ نہیں نشر کرتا رہتا, اپنے گھر کے معاملات اور گھر والوں کے معاملات اور گھر والوں کو تکلیفیں اور اذیتیں, اذیت تکلیف جو خود دے رہا ہوتا ہے اس کو تو وہ ذکر نہیں کرے گا لیکن دوسروں کی ضرور ذکر کرے گا. تو وہ خود بخود وہ یعنی کہ ظاہر ہے جتنا آپ اپنا منہ ہم کھولتے جاتے ہیں اتنا ہی سوالوں کے لیے اللہ کے سامنے جواب دہی کے لیے تیار رہنا ہے نا پھر. تو یہ ساری باتیں وہ سوچ سمجھ کر چلتا ہے کیونکہ مومن ہے نا, اللہ سے ڈرتا بھی ہے, اللہ کے ساتھ محبت بھی کرتا ہے, تو اس لیے وہ لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے. لوگوں سے ملنے جلنے اور معاملات کے لیے بھی وہ اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اور اس کے لیے بہادری درکار ہونی ہوتی ہے. کس کے لیے؟ لوگوں سے معاملات کے لیے اور ان کو ملنے جلنے کے لیے بہادر ہونا پڑتا ہے. ہم بہادر نہیں ہوتے, ہم کیا کرتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ جو بندہ لوگوں سے ملتا جلتا رہتا ہے وہ اس سے بہتر ہے کہ جو لوگوں سے رشتہ کاٹ لیتا ہے نا. تو لوگوں سے جو ملے گا اس کو باتیں بھی سننے کو ملیں گی اور ان باتوں پر وہ صبر بھی کرے گا اور صبر کی وجہ سے وہ اجر بھی پائے گا. اور جو نہ لوگوں سے ملتا ہے نہ کوئی بات سننے کو ملتی ہے, وہ کئی لوگ کہہ دیتے ہیں ہمیں نہیں کسی سے ملنا, نہ ملیں گے نہ کوئی بات کرے گا نہ کچھ ہوگا. جو بھی ایک تو خاموشی کے لیے اچھی بات ہے, لیکن یہ ہے کہ صرف خاموشی ہی نہیں, ہمیں چاہیے لوگوں کے حقوق بھی پامال نہ ہوں. کیونکہ اگر ہم رشتہ داروں کے ساتھ نہیں ملیں گے تو کیا ہوگا, لوگوں کے حقوق پامال ہوں گے. ہم اپنے نیبر کو کبھی پوچھیں گیچھیں گے نہیں تو ان کے بھی ظاہر ہے کہ ہمسائے کے بھی حقوق ہے وہ بھی پامال ہوں گے. تو اس لیے اب ان سے ملیں گے تو صبر کرنا پڑے گا نا باتوں سے, کیونکہ باتیں بھی تو سننے کو ملیں گی نہ کبھی, تو باتوں پہ صبر کرنا پڑے گا. تو پھر یہ ہے کہ اگر زیادہ مصیبت آ گئی تو اس پر اللہ سے مدد مانگے نوافل کے ذریعے. تو اس کو ہم حدیث نمبر 24 کو دیکھتے ہیں جو کہ کافی ہم نے آلریڈی ڈسکس کر ہی لیا اس کے بارے میں. انبنی آپ کو نظر آ رہی ہے,
عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أعدائهم أعظم أجرا من المؤمنين الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أعدائهم رواہ ابن ماجہ۔ تو یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مومن لوگوں سے مل کر رہتا ہے اور ان کی تکلیف پر ان کی ایذا پر صبر کرتا ہے اس کو زیادہ ثواب ہے اس مومن سے جو لوگوں سے نہیں ملتا اور نہ ان کی ایذا پر صبر کرتا ہے۔ کیونکہ بعض لوگ تنہائی پسند ہوتے ہیں نا، تنہائی کی زندگی اسی لیے وہ گزارتے ہیں کہ نہ کسی سے ملو، نہ کسی کی بات سننی پڑے، نہ کسی سے لڑائی جھگڑا ہو۔ تو انسانوں سے کمی زیادتی تو ہوتی رہتی ہے، وہ تو ہوگی، ہاں؟ انسان ہے نا، انسان ہے، کمی زیادتی ہوگی، رشتوں کو ملیں گے، لوگوں کو ملیں گے، ہمساؤں کو ملیں گے تو کمی زیادتی ہوگی، اس سے اس پر صبر کرنا ہے، تو ان سے تعلق نہیں توڑنا، صبر کرنا ہے، تعلق نہیں توڑنا، کیونکہ قطع تعلقی جو ہے وہ اسی کتاب میں ہم پڑھیں گے کہ کیا چیز ہے نا، صبر کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو آج یہ حدیث نمبر 25 ہے۔ ایک منٹ میں اس کو آپ لوگوں کو تھوڑی سی اوپر کروں تاکہ آپ کو نظر آ جائے۔ 25 سے نیچے سے شروع ہوتی ہے پھر اوپر کو جائیں گے، کیونکہ جہاں پہ آپ کو آخر میں دیکھیں حدیث نمبر 25۔ عن صہیب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عجبا لامر المؤمنین ان امرہ کلہ لہ خیر ولیس ذلک لأحد الا للمؤمنین ان اصابته سراء شکر فکان خیر لہ وان اصابته ضراء صبر فکان خیر اللہ۔ رواہ المسلم، رواہ المسلم یعنی مسلم جو کتاب ہے اس میں وہاں پہ ہے۔ سیدنا صہیب سوری باجی آج تھوڑا سا آگے اوپر کر دیں، کر دیں۔ سوری وہ میں پہلے کر رہی تھی تو وہ آگے آ جاتی، ٹھیک ہے آگے آپ کو آ گئی اب۔ سیدنا صہیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، بے شک اس کے ہر معاملے میں اس کے لیے خیر ہے، یعنی برائی پہنچ رہی ہے تو تب بھی خیر ہے، اچھائی پہنچ رہی ہے، بھلائی پہنچ رہی ہے تو تب بھی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے مومن کے لیے۔ کہ کس طرح وہ اس خیر کا حقدار ہو جاتا ہے کہ اور یہ صرف مومن ہی کے لیے ہے، خیر ہی خیر ہے اور یہ صرف مومن ہی کے لیے ہے۔ اگر اسے خوشی پہنچے تو وہ شکر کا ادا کرتا ہے جو اس کے لیے خیر و برکت ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے جو اس کے لیے خیر ہے، تو خیر ہی خیر ہے نا پھر ہو گئی۔ تو ہم کہاں کرتے ہیں ایسے، جب نعمت ملتی ہے تو ہم نعمت کو لے کے کیا کرتے ہیں، ہم دوسروں کا شکر ادا کرتے ہیں نا، دوسروں کی طرف بڑھتے ہیں، دوسروں کا تو شکر ادا کرتے ہیں، دینے والا رب جو ہے اس کا شکر نہیں ادا کرتے، تو ہم نے اس کا بھی شکر ادا کرنا ہے بندوں کے شکریہ کے ساتھ ساتھ۔ سب سے پہلے تو رب کا شکر جس نے دے دیا نا، آپ سوچتے ہیں کہ وہ تو فلاں بندے نے مجھے دیا تھا نا، وہ چیز تو فلاں بندہ لایا تھا یا بندی لائی تھی، تو کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے بھیجا ہے۔ اگر وہ مال خرچ کر رہے ہیں تو مال ان کے میں اتنا اللہ تعالیٰ نے وسعت ڈالی اور ان کو خیال دیا آپ کو دینے کا۔ اگر کوئی اور بات ہے ملنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے خیر اور بھلائی ان میں بھی رکھی ہے تاکہ آپ کو تک وہ پہنچا سکے۔ تو اس لیے شکر ادا کرنے کے لیے اللہ جو ہے اس کو سب سے پہلے رکھے۔
बंदों का भी शुक्र अदा करें, क्योंकि जो बंदों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं कर सकता। इसलिए बंदों का भी शुक्रिया करें, लेकिन अल्लाह का भी साथ में शुक्रिया करें। लेकिन ये जहाँ पे मैं जिंदा बंदों के लिए बात कर रही हूँ, मुर्दा के लिए नहीं, कि उनकी कब्रों पर जाकर उनका जनी भी उनसे पहले मांगे कब्रों पे जाके और फिर उनका शुक्रिया अदा करें। मैं जिंदा की बात कर रही हूँ। जिंदा ही इंसान किसी को फायदा पहुंचा सकता है, मुर्दा नहीं। आगे वाली हदीस, अनिन नद्र इब्न अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु लौला अन्नी समिअतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल ला ततमन्नवुल मौत लतमय लतमय सॉरी लतमन्नैतु, तमन्ना जैसे है ना, लतमन्नैतु। रवाहुल बुखारी। सैयदना नदर बिन अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि सैयदना अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, यानी उनके बाप ने, कि अगर मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये ना सुना होता कि मौत की तमन्ना ना करो तो मैं जरूर तमन्ना करता। जाहिर है तकलीफ होगी कोई तो, और इंसान जब खास कर बुढ़ापे में होता है तो इंसान क्या कहता है, वो कोई तकलीफ आई होती है, बीमारियां बहुत होती हैं, तो इंसान फिर जहाँ बच्चों ने इतना तंग किया होता है कि माँ बाप को पूछते भी नहीं है और माँ बाप को इतनी अजीयतें देते हैं, तो फिर इंसान जो है वो तंग आकर तमन्ना करे, तो कभी भी तमन्ना नहीं करनी चाहिए मौत की, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया। तो हालात जितने भी खराब हो जाए, लेकिन मौत की तमन्ना ना करें, अल्लाह से मांगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये करने से मना फरमाया। अल्लाह से मांगे, अल्लाह से मांगते रहें, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें, जो अल्लाह ने दी है नेमत उस पर शुक्र अदा करते रहें और भी मिल जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मुझे ये तकलीफ पहुंची है तो मेरा जिस्म तो सलामत है, अगर मुझे लोगों ने तकलीफ पहुंचाई है तो मैं ठीक ठाक हूँ। मुझे अल्लाह ने ये भी नेमतें दी हैं, अब ये नेमत ली है लोगों की तरफ से सलूक की, तो उससे के सब्र अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। आगे हदीस है 27, अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु अन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल यक़ूलुल्लाहु तआला, हदीस कुदसी है, ला मा लिअब्दिल मुमिनी इंदी जज़ाउन इज़ा क़बद्तु सफ़ियहु मिन अहलि दुनिया सुम्मा इहतसबहु इल्लल जन्नह। अब मैं आगे कर दूं आप लोगों के लिए, देख सकें आप। रवाहुल बुखारी। साबित से रिवायत है, उन्होंने कहा कि मैंने सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे उस मोमिन बंदे का जिसका मैं कोई अजीज दुनिया से उठा लूं, यानी कोई मार जाता है और वो उस पर सब्र की नीयत से, सवाब की नीयत से सब्र कर ले, तो उसका बदला मेरे जहाँ जन्नत के सिवा और कुछ नहीं है। सुभान अल्लाह। उस वक्त हम भूल जाते हैं, है ना, कि अजीज दुनिया से चला गया और वो सवाब के मुझे सवाब मिलेगा, तो वो उस पर सब्र कर गया। तो हदीसे कुदसी है, अल्लाह फरमा रहे हैं ना, तो दुनिया से जाने वालों के पार सब्र करना, रोने पीटने की बजाय दुआ करना, दुआ भी मसनून हो, यानी कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं दुआएं, उनमें से हो, और जो करे और दूसरी यानी कि दूसरी दुआ कुरान की तिलावत के बाद की दुआओं से जरी जो है वो करे,
क्योंकि तिलावत के बाद की भी दुआएं हैं, उनमें मगफरत की भी दुआएं हैं, उनके उनके दर्जात बुलंद की भी दुआएं हैं। अल्लाह ने एक को उठाया है, बाकी से मुंह मोड़ लेना सब्र नहीं है। कोई गिला शिकवा नहीं अल्लाह से, क्योंकि उसकी चीज थी, उसने ले ली। क्योंकि अमानतदार, अमानत जिसकी अमानत होती है, वो जब चाहे वापस ले ले। आप ये नहीं सवाल कर सकते कि क्यों ले ली तूने, तूने मुझसे ये क्यों छीन ली, क्यों ले ली, मेरा ही क्यों चला गया। क्योंकि अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने ले ली। अल्लाह सुब्हाना व तआला हम सबको रहमत सब के ऊपर फरमाए, अ, लंबी उम्रें अता फरमाए, सेहत वाली, अच्छे अमाल वाली। और अगर कोई ऐसा मौका आए तो अल्लाह ताला सब्र की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि जाना भी दुनिया से सभी में नहीं है। ये नहीं है कि कभी जाना नहीं है, तो इसलिए तो दुआ तो हम करते हैं मोमिन के लिए, सभी के लिए सेहत वाली लंबी उम्र की और नेकियों भरी उम्र की। क्योंकि उम्र लंबी हो और साथ में गुनाहों का इजाफा ज्यादा हो, तो उस लंबी उम्र से बेहतर है कि इंसान की उम्र छोटी ही हो। और अगर छोटी उम्र हो और उसमें भी यानी कि नेकियां बिल्कुल भी ना हो, तो क्या होगा वहां पे, तो भी फिर खसारा ही खसारा होगा, क्योंकि उम्र भी छोटी है, नेकियां भी इतनी करने का यानी कि इतना मिला भी नहीं है मौका, और जो मिला उसको भी गंवा दिया। तो अल्लाह सुब्हाना तआला अपनी रहमत के साए में हर वक्त में रखे हमें। हदीस नंबर 28 है, अन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल समिअतु अनसन, अन साबित जहाँ पे रदी अल्लाह ताला अन्हु नहीं लिखा हुआ, मुझे अब ये नहीं पता कि ये सहाबी थे जहाँ ताबी थे, ठीक है। क्योंकि एक साबित सहाबी भी थे, तो इसलिए मैं नहीं कह सकती। उन्होंने सुना किससे, क़ाल समिअतु अनसन रदियल्लाहु ताला अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अस्बि अस्सब्र इंदस सदमातिल ऊला। ये है जो मैं बता रही थी, अस्सब्रु इंदस सदमातिल ऊला। इसको हम जुबानी याद कर लें तो बेहतर है। बिल्कुल इतना ही याद करना है, अस्सब्रु इंदस सदमातिल ऊला, के अस्सब्रु सबर इंदा पास पर असदमाती सदमा पर ऊला पहले वक़्त में, ऊला पहला वक़्त। साबित से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि मैंने अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब्र सदमे के आगाज़ में होता है। यानी जैसे ही कोई खबर सुनी, तो फौरन क्या कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल था, ये अपना अमल था उनका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पढ़ने के बाद 2 नफल फिर पढ़ते थे। ज़ाहिर है क्या है, अल्लाह से मदद तलब करो सब्र और नमाज के ज़रिए। पहले अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते, और फिर क्या करते, 2 नफल पढ़ लेते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब्र सदमे के आगाज में होता है और बाद में तो सब्र आ ही जाता है ना। और सब्र मारते दम तक ही करना है, वो ही सब्र है। यानी कि ये नहीं उस वक़्त तो सब्र कर लिया, बाद में फिर वो जब भी याद आए, जब भी वो फिर बेसब्री दिखाएँ, वो नहीं है। मरते दम तक अल्लाह ताला तौफीक दे। वक़्ती तौर पर कंट्रोल करना सब्र नहीं है। जब-जब सदमा पहुँचे, तकलीफ पहुँचे, मुश्किलात पर सब्र करना, यानी कि हर एक के हालात मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो ए, जे फिर नागहानी आफ़ात हों, अपनी जिस्मानी आफ़ात हों, या फिर दूसरों की तरफ से दी गई अज़ियतें हों, अंदरूनी हालात हों या बैरूनी हालात हों,
ان सब पर सब्र करना, है ना। तो ये सब्र की ये बहुत सारी हदीसें नहीं थी, 4 हदीसें हैं और कुछ कुरान की आयत हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 कुरान की आयत और 4 हदीसें। तो आज का छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत मुश्किल टॉपिक है। ऐसा ही है जी ना? नहीं। बच्चा बच्चा रो रहा है, चिल्ला रहा है, हम उससे भी ज़्यादा चिल्लाना शुरू कर दें बड़ा, है ना? तो क्या होगा? घर में हंगामा खड़ा हो जाएगा, ऐसा ही है? जी बच्चे भी चिल्ला रहे हैं, माँ भी चिल्ला रही है, बाप चिल्ला रहा है कि उनको रोको, है ना? तो क्या है? हंगामा खड़ा हो गया ना, जी जी है ना? तो हर बंदा ही अपनी-अपनी बोली बोल रहा हो जब तो हंगामा लगता है, ऐसा लगता है बाहर वाले सोचते हैं कि इनके घर में लड़ाई हो रही है। हालाँकि ऐसा नहीं होता, वो सारों की आदत होती है ज़्यादा ऊँचा-ऊँचा बोलने की और क्योंकि हर बंदा ही चिल्ला रहा है, बच्चे अपनी जगह पे चिल्ला रहे हैं, माँ ये करो, वो करो, शौहर अपनी जगह पे चिल्ला रहे हैं, जल्दी से नाश्ता बना दो, मैंने काम पे जाना है और उधर सास-ससुर हैं तो वो चिल्ला रहे हैं, हमें अभी तक चाय नहीं पहुँची, खाना नहीं पहुँचा, यानी कि हर बंदा ही चिल्ला रहा हो, तो क्या हाल होगा? वो औरत भी फिर चिल्लाना शुरू कर देगी, ऐसा ही है? जी ना क्योंकि वो भी फिर सब्र नहीं कर सके क्योंकि सभी चिल्ला रहे हैं। इस सबर का पैमाना टूट जाए तो फिर उसने भी तो तो लेकिन ये है कि हाँ, अब उसके लिए सब्र है क्योंकि अगर वो उसने सब्र कर लिया सभी के चिल्लाने पर तो उसके बच्चे उससे सीखेंगे। उसके बच्चों के लिए वो खामोश दाई होगी, है ना? उसकी सास-ससुर भी उस सोचेंगे कि ये देखिए हमने बोल रहे थे ये वो और इसने खामोशी से लाके आगे रख दिया है ना? शौहर भी सोचेगा, है ना? जैसे यानी कि हम खामोशी इख्तियार करके दूसरों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं, हमारे बारे में कि अच्छा सोचे। लेकिन जब हम खुद भी चिल्लाएँगे तो बच्चे भी सुनते हैं कि हमारे घर में तो सिर्फ चीखना चिल्लाना ही है, तो अगर मैं चीखूँ चिल्लाऊँगा ना चीखूँ चिल्लाऊँगी तो मेरी बात नहीं सुनी जाएगी, है ना? तो वो फिर चीखना चिल्लाना ही सीखते हैं, वो फिर भी उन्हें भी यही होता है कि जब मैं चीख कर बात करूँगी तो मेरी कोई सुनेगा, जब मैं शाउट करूँगी तो फिर सुनेगा। तो हम हर एक की आवाज़ के ऊपर आवाज़ अपनी बुलंद करना फिर शुरू कर देते हैं। तो इससे अल्लाह सुब्हान व तआला हमें तौफ़ीक अता फरमाए कि हम सब्र का मामला करें। कोई फ़ौत हो गया, किसी की खबर सुनी, उस पर सब्र, न? और किसी ने तकलीफ़ें दी, उस पर सब्र। कोई क्योंकि ज़्यादातर हमसाए या घर वाले क्योंकि ज़ाहिर है रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा मामला होता है। हम फिर सब्र नहीं उनकी बातों पर करते, तो हम रिश्ते तोड़ लेते हैं, सब्र नहीं करते। रिश्ता तोड़ना आसान हम समझते हैं, लेकिन सब्र करना हम मुश्किल समझते हैं। तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला को सब्र करने वालों के लिए के अजर अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि सब्र करने वालों के लिए मेरे पास अजर है ना? बहुत बड़ा अजर अज़ीम भी है। तो जो सब्र हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का देखें कितना सब्र किया उन्होंने। बेटों को उन्होंने पहचान लिया था कि बेटे जो है शर्ट के ऊपर गलत खून लगा के आए हैं। क्यों? क्योंकि शर्ट तो पाटी हुई नहीं है, फटी हुई नहीं है, लेकिन खून लगा हुआ है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि भेड़िया वो शर्ट को उतार के खून लगा दे? हुँ? या शर्ट पे खून तो लगा दे खाने का लेकिन शर्ट को कुछ नुकसान ना हो। तो फ़ौरन ही पहचान गए थे कि ये बच्चों का, मेरे बेटों का ड्रामा है। इन्होंने कोई चाल चली है मेरे साथ। तो लेकिन क्या किया? फसब्रुन जमील, फसब्रुन जमील। मैं अच्छा सब्र करता हूँ। तो इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। उन्होंने ये अल्फाज पढ़े थे कि मैं अपने गमों का शिकवा अल्लाह से करता हूँ। इनके तुमसे क्या कहना है? बच्चों ने फिर दूसरी बार आके क्या बात बताई कि बिन्यामीन भी चले गए हैं अब, न? और जी साथ में तीसरा बेटा भी वहाँ पे रह गया, वो खुद रहा था।
बाप को मुंह दिखाने के नहीं उसने अपने आप को काबिल समझा, थोड़ी सी तो गैरत बाकी थी उसकी, वहां पे रह गया। 3 बेटे अब जाते हैं तो क्या पढ़ते हैं, क्या क्या कहते हैं, इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। मैं अपने गमों का शिकवा सिर्फ अल्लाह से करता हूँ। तो अल्लाह जो है, अपने गमों को अल्लाह को बताएं जो सुनने वाला है। दूसरों को बताने की क्या जरूरत है, उन पर सब्र और अपने रब को बताएं। अल्लाह तुझसे मांगती हूँ तू दे दे। बंदों से तो मांगने का भी कोई फायदा नहीं है जब तक अल्लाह से ना मांगा जाए। तो अल्लाह से फिर सब्र मांगे, अल्लाह से ही मदद मांगे, अल्लाह से ही सब कुछ मांगे जिसने देना है। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम का हमारे सामने वाकया आता है, किस तरह उन्होंने सब्र किया। इतने साल कहते हैं 15 साल, जब डिपेंड करता है जनी के बीमारी उनको लगी थी, और इतनी बीमारी जबरदस्त थी कि सारे लोग जो थे, कोई नहीं, अपने तो सारे चले गए, अपने खत्म हो गए। सिर्फ एक बीवी बाकी बची थी, और ना कोई मिलता ना जुलता ना कुछ भी, एक बीवी थी वही खिदमत करती थी। और इतने सब्र वाले थे कि कोई गिला शिकवा नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं। वरना हम क्या करें, हम जैसे होते तो अल्लाह ताला तूने सब कुछ मेरा छीन लिया, मैं इतनी अमीर थी, मेरे सारे चले गए, मेरे इतने बच्चे थे, मेरे इतने घर वाले थे, मेरा इतना माल था, सारा चला गया। अल्लाह ताला मैं ही क्यों रह गई दुख दुख देखने के लिए, मैं क्यों जिंदा हूँ, मुझे क्यों नहीं मौत आ जाती। नौजुबिल्ला, यानी कि इतना हम कोसते हैं अपने आप को भी, लोगों को भी, इधर उधर हालात को भी। तो उन्होंने क्या किया, कुछ नहीं कहा। जब कहा तो क्या कहा, सिर्फ इतना कहा कि अन्नी मस्सनी यद्दुर्र व अंत अरहमर राहिमीन, अंत अरहमर राहिमीन। बेशक है अल्लाह, बेशक मुझे तकलीफ पहुंची है, लेकिन तू रहम करने वालों में सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। यानी तकलीफ तो मुझे पहुंची है। तो बीवी ने जब कहा था कि शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर बात पर, तो कहने लगी कि किस बात पर शुक्र कर रहे हो, यानी सब कुछ तो तुम्हारा चला गया है, बाकी क्या बचा है जिस पर शुक्र कर रहे हो। तो उस वक़्त उन्होंने कहा था कि मैं ठीक हो गया ना, यानी कि गुस्से में आ गए, यानी कि मेरे पास, कहने लगे मेरे पास ज़ुबान जो है बाकी, जिससे अल्लाह का ज़िक्र कर रहा हूँ, जिससे शुक्र कर रहा हूँ, ज़ुबान की नेमत बाकी है ना अभी। सिर्फ़ ज़ुबान ही चलती थी जिससे बात कर सकते थे। जिस्म पैरालाइज़ हो चुका था, यानी कि जिस्म को कोई तकलीफ़ लाहिक थी। ज़ुबान चलती थी, उसके लिए अल्लाह का शुक्र कर रहे थे। तो हम देखें जिस्म के कितने हिस्से चलते होते हैं, हमारे ठीक-ठाक होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं, सेहतमंद होते हैं, और हम फिर भी एक नेमत के जाने से एक बीमारी आ गई उसमें, वो भी हमारी अपनी, कहीं न कहीं होता है। जैसे पेट की बीमारी है तो ज़्यादा खा लिया, ज़्यादा खा-खा के साँस भी फूल-फूल के चढ़ता है, इतना हम खाते हैं कि अपने जिस्म को पूरा भर-भर के, और फिर आखिर में मैदा जो है आहिस्ता-आहिस्ता वो जवाब देता चला जाता है, फिर हम कहते हैं कुछ चीज़ हज़म नहीं होती। तो जी इस तरह ही हम अपनी नहीं टेक केयर करते, और फिर बाद में हम कहते हैं कि मुझे ये हो गया, ये हो गया, है ना? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बंदे को नेमतें दी हैं, जिस्म दिया है, उसकी हिफाज़त हमने करनी है। हमने हमें अपने आप को, औरतें ज़्यादा, मैं खुद आप बहुत नेग्लेक्ट कर देती हूँ कि अपने आप को तवज्जो नहीं देती, बस दूसरों का ये कर लूँ, वो कर लूँ, और अपनी सेहत पर वो तवज्जो हम नहीं औरतें देती। हालाँकि ये है कि हम सबको पता है कि सेहत होगी तो फिर ही हम कुछ कर सकेंगे, है ना? तो हम, अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, एक औरत होने के नाते घर में सब कुछ चलता है, क्योंकि घर वाले इकट्ठे रहते हैं, 2 बर्तन एक दूसरे के साथ रख दो तो वो बजते हैं। चाहे यूं ही आप उठाएंगे, एक दूसरे के साथ लगेंगे तो जरूर लगेंगे वो। घर घर में
तो कुछ ना कुछ होगा तो ज़रूर, लेकिन उस पर सब्र कर जाएँगे तो वो भी चला जाएगा। अगर उस पर ज़्यादा हंगामा खड़ा कर लिया, तो उससे ज़्यादा बात बिगड़ जाएगी। तो हमने सब्र हम औरतें हैं, अल्लाह सुब्हान व तआला ने वैसे भी औरत में सब्र का पैमाना ज़्यादा है। लेकिन अगर औरत इस्तेमाल करे तो फिर वरना औरत जो है वो जल्दी से यानी कि आपे से बाहर जल्दी हो जाती है। मर्द जो हैं जब वो तकलीफ को उनमें बर्दाश्त करने का ज़्यादा मादा है अल्लाह ताला ने रखा, वो सब्र करते हैं बहुत बड़ी-बड़ी मुसीबत जैसे कि कोई मर्द है उसको काम पे इतनी अज़ियत है, इतना सता रहा है, बॉस भी जब लोग भी कोई भी खामोशी से घर आता है और खामोशी से अपना कई दफ़ा कोई मर्द हो जो अपना बताता होगा कि वरना खामोश रहते हैं, बाहर की तकलीफ़ें बाहर छोड़ आते हैं। घर में दाखिल होते हैं तो बीवी ने हंगामा खड़ा किया होता है, ये देखो बच्चों ने ये कर दिया, फलां घर वाले ने ये कर दिया, घर वाले अलहदा बता रहे होते हैं। उसने फिर घर वालों की सुननी होती है। तो जब घर वालों की सुन के दफ्तर जाता है, जब बाहर जाता है तो घर वालों की पीछे छोड़नी पड़ती हैं उसको। क्योंकि आगे वाली भी अब सुननी है। तो उसमें सब्र ज़्यादा होता है औरतों की निस्बत। हम औरतें ज़्यादा बेसब्री हो जाती हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरत को यानी कि कब्रिस्तान जाने से कि पहले तो सभी को मना कर दिया था कब्रिस्तान जाने से, फिर बाद में जब फरमाया था कि जा सकते हो तुम अब, तो औरतों के लिए कि औरतों को कब्रिस्तान में हर वक़्त नहीं जाना चाहिए। कभी अपने आप को वो याद दहानी के लिए कि मुझे भी मौत आनी है, क्योंकि औरतें ज़ुल्म भी फिर अगर करने पर उतरें तो ज़्यादा करती हैं। तो याद दहानी के लिए अपने आगे के लिए सोचने के लिए कभी चले जाएँ तो कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि हर वक़्त मामूल ना बनाया जाए कि हर रोज़ जाया जाए, वहाँ पे ही ज़्यादा टाइम लगाया जाए। तो क्योंकि औरत बेसब्री हो जाती है, इसलिए औरत वहाँ पे जाके रो सकती है, रो धो सकती है। गलत काम यानी कि ये फिर गलत है ना, वहाँ पे जाके चीखो-पुकार करना ना। तो और औरत बेसब्री जल्दी होती है। हम सब्र का दामन जल्दी खो देते हैं। तो इसलिए हमें ये सब्र अल्लाह ताला दे और हम इसको इस्तेमाल करें। बाकी अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल करते हैं तो सब्र की नेमत को भी हम इस्तेमाल करें इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह हमें सब्र करने की, दूसरों की अज़ियत दूसरों से अल्लाह ताला की पनाह ही माँगनी चाहिए कि अल्लाह ताला मुझे ऐसे लोगों का साथ ना दे कि जो मुझे अज़ियत जैसे हमसाया अल्लाह ताला मुझे हो हमसाये के लिए भी दुआ है ना कि अल्लाह ताला ऐसा हमसाया जनी ना दे जो कि मैं यानी कि मुझे तकलीफ़ें देने वाला हो। तो घर वालों के लिए भी दुआएँ जहाँ कोई वो तकलीफ़ें देते हैं, अल्लाह ताला इन्हें भी हिदायत दे, मुझे भी हिदायत दे, ताकि हम एक-दूसरे को तकलीफ़ ना दें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे सब्र दे, मुझे सब्र करने की तौफ़ीक दे। बड़े हैं तो उस पर सब्र करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हम लोगों पर ज़्यादती ना करें क्योंकि हमने ज़ुल्म पढ़ा है ना, तो ज़ुल्म में क्या है, हम लोगों पर ज़ुल्म ना करें, हम दूसरों पर ज़ुल्म ना करें। अगर हमारे ऊपर हो रहा है तो हम उस पर सब्र करें। ये देखो ज़ुल्म के बाद फ़ौरन ही सब्र आया है, क्योंकि ज़ुल्म जो कर रहा है उसने तो किया ज़ुल्म, लेकिन अब आगे वाला जो है उसने सब्र करना है तो अल्लाह ताला हमें सब्र की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह ताला कोई बहन कभी होती है कोई बात शेयर करने के लिए तो यू आर वेलकम कर सकते हैं इसमें शेयर इंशाअल्लाह ताला। आज हमारे साथ बुशरा बहन नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला किसी बहन ने अपना कुछ बताना हो, शेयर करना हो, पूछना हो तो पूछ सकते हैं, जहाँ पे हम रिकॉर्डिंग खत्म कर देते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. आमीन सुम्मा आमीन। मुझे याद आया कि जहाँ पे हदीस नंबर जो 27 है कि अल्लाह ताला के हदीस कुदसी जो है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे उस मोमिन बंदे का जिसका मैं दुनिया से कोई अजीज उठा लूं और वो उस पर सवाब की नीयत से सब्र कर ले तो उसका बदला मेरे जहाँ जन्नत के सिवा और कुछ नहीं है। तो इस पर वावेला जो है उससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि वो चीखो पुकार और वावेला नहीं करना। वो जो औरतें क्या करती हैं, रोती हैं, पीटती हैं अपने सरों को, अपने बालों को खोलती हैं और क्या करती हैं, नोहा करना, वो उससे मना फरमाया गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोहा करने वाली औरतों पर लानत भेजी है। उनको रोका है, बार-बार रोका है कि नोहा ना करें, चीखो-पुकार ऐसी ना करें। तो अब तकलीफ है, दुःख है तो आँखों आँखों से आंसू निकल जाते हैं, तो वो तो नेचुरल बात है कि कोई अज़ीज़ गया है दुनिया से। लेकिन जो ऊँची-ऊँची आवाज़ों में चीखो-पुकार करना और दूसरी औरतें आ रही हैं, वो भी बार-बार गले लग रही हैं और बार-बार वो चीखो-पुकार औरत भी कर रही है, साथ में सब घर वाले, बहुत चीखो-पुकार नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जो जिसका था वो ले गया, हमारा था नहीं, हमारे तो सुपुर्द किया गया था थोड़ी देर के लिए। तो इसलिए जब हमें दीन की समझ होगी तो फिर हम ज़रूर उस पर सब्र करेंगे। अल्लाह ताला हमें वो समझ अता फ़रमाए और हमें सब्र की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारे अज़ीज़ व अक़ारिब को सेहत वाली लंबी और नेकियों भरी उम्रें गुज़ारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और हमें अल्लाह की नाफ़रमानी के कामों से अल्लाह ताला बचा ले और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका बाबा जी मैं नशहदु कुछ अल्ला कहने इलाहा लगी इल्ला थी। अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। हाँ जी। बाबा जी आज से मेरे ख्याल 15-16 साल पहले मेरा बेटा जो ना 17-18 साल का होता था, है ना। हाँ, तो बाजू एक दिन है ना वो जहाँ मैं रहती हूँ ना वह आपको पता है स्नो पड़ी। हाँ, तो वो स्लेजिंग कहता कि मैंने लेनी है, तो मैं उसे लेने नहीं देती। वो कहता कि मैंने स्लेजिंग लेनी है, उसके बड़े भाई के पास थी। हुँ, मैं उसे कहती कि नहीं लेनी, तो उसने टेल से पैसे लगाए 5 पाउंड का। मैं कहा शामली की दुकान पर सस्ती जी लगी हुई थी। उसने लेकर आ गए, तो मैंने कहा पैसे कहाँ से लिए? से कहता मैं टेल ते ले। मैं कहा ऐसे नहीं पैसे ले सकते। तो वो बाजी वो आ गया, तो वो उन्होंने हिल से स्लाइड की, तो वो जो कोई स्टोन था उसके पीछे लगा। लगा। हाँ, लगा तो वो इतना बाजू, जब मैं घर आई तो वो सिक हो रहा था, उल्टियाँ कर रहा था। मैं दुकान से वापस आई, तो मैं आती उसे बोलने लगी, "ये कारपेट को पीस के बाहर पड़ा है।" तो कहता कि मुझे उल्टियाँ आ रही। दूसरा एम्बुलेंस को फ़ोन कर रहा था बड़ा बेटा। हुँ, तो वो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, ऐसी कोई चोट लगी मैं उससे बोल ही जाती हूँ। तो मेरे साथ ही मेरी बेटी का घर है, उसे फ़ोन किया, नाज़िया आए देखें हुए आपके भाई को क्या हुआ। तो बाजी वो आई तो देखा, तो वो कहती कि मेरे तकलीफ़ बहुत हो रही, पीछे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। हुँ, तो फिर वो बाजी वो एम्बुलेंस को फ़ोन किया, वो आई, वो कहते कोई ना पैरासिटामोल वगैरह खा ले। जब एम्बुलेंस चली गई तो उसने पेशाब किया, तो बाजी उसके पेशाब में खून ही खून था, है ना? और जब मुझे पता चला तो मैं तो भाई अब सब्र नहीं ना हुआ बाजी, पता नहीं अब हुँ, क्या होगा, है ना? हुँ, तो उसने मेरी छोटी बेटी को बतला कर कहा कि देख सोबिया मेरे खून बहुत आ रहा है। हुँ, फिर एम्बुलेंस को फ़ोन किया, वो आए, तो फिर मैं और मेरे हस्बैंड लेकर उसे एम्बुलेंस से मैं चले गए गए। वहाँ। तो वो बाजी पहले कुछ ना कुछ पता ही नहीं लग रहा था, पता ही ना। फिर उन्होंने बताया कि उसकी जो किडनी है ना वो उसकी जो पहले है वायर वो टूट गई है हुँ, ना? जिसकी वज़ह से खून बहुत ज़्यादा बह गया है। उससे बातें करो, क्योंकि जो अगर ये मर जा ऊँग आ गई इसके, तो ये बहुत खतरनाक चला होगा। गए। हाँ, हाँ जी, तो वाजिब उस तरह सफ़र नहीं हो रहा था, हाँ, है ना? वही ना सब तो अपने जाते हैं ना हाँ जब जी, अपने की हाँ जी। तकलीफ होती है ना। हाँ जी, बाजी वो इतना ज़ख्मी हो गया था ना, फिर वो हिल भी नहीं सकता था कि उसका उन्होंने बड़ी कोशिश की, उसने ऑपरेशन करके वो जोड़ दी, फिर भी खून तो स्टॉप हो गया, लेकिन हुँ, खून बहुत ज़्यादा चला गया। हुँ, फिर उन्होंने किडनी के हॉस्पिटल में एडनबरे वहाँ शिफ्ट कर दिया। दूसरे दिन हम कहे अब ठीक है, हम घर आ गए। तो फिर अचानक फ़ोन आया कि वो बहुत सीरियस है।
है ना बाजी। तो हम्म, वो इतना सिखा ना, तो जब मैं रो रही थी ना, तो मेरे हस्बैंड ने कहा देख रो ना, सब्र कर, देख वो जो जलजला आया था ना पाकिस्तान में बाजी साहब, उस वक्त ठीक है। उस वक्त था ना, देख उस बूढ़े आदमी ने 3 बेटे अपने दफनाए, हाँ, है ना, तू सब्र कर, तू रो ना, है ना, तो मुझसे सब्र ही नहीं हो रहा था ना। वही ना तो कि अल्लाह ताला बस ऐसी मुसीबत में डाले ना, है ना, हमें डाले ना, वो वो पनाह फिर मांगनी चाहिए मुसीबतों से भी, है ना। हाँ जी बाजी, वो 3 वीक वहाँ रहा, तो फिर अल्लाह करे जिंदगी तंदुरुस्ती देवे, वे ठीक हो गया सी माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, अल्लाह ताला उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह, लंबी हाँ जी, उम्र दे, सेहत वाली हाँ नेक जी, बड़ी हाँ उम्र जी। दे, है ना, वो जो अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मुसीबत की बात होती है तो मुझे वो अपना दुख भी याद आता आ है, जाता ऐसे है। याद आता है ना, तो वैसे वही सब्र करना यही बेहतर है बाजी। अल्लाह सॉरी ताला सब्र सब्र की नहीं, तौफीक सब्र कर, रो ना, सब्र कर। हाँ, अल्लाह ताला हम सबको सब्र की तौफीक हाँ अता जी, फरमाए। अल्लाह हाँ ताला जी, ऐसी नागहानी चीजों से अल्लाह ताला बचाए, हमें तकलीफों हाँ से जी, बचाए और सब्र की तौफीक अता फरमाए अगर आ जाए तो इंशाल्लाह। हाँ